आ रही है? हेलो। Yes, sir. ठीक है बेटा। Sir. जी बेटा। हाँ? Beta, after the completion of the 3 germinal layer and derivatives of those, we will discuss. One was the small topic, body cavities and formation of the diaphragm. So Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the body cavities. So embryological development of the body cavities and serous membrane and gut we will discuss here. So this is the initial stage in which there are the two end. One is the cranial end, other is the caudal end. Cranial end at the buccopharyngeal membrane. At the caudal end, there is a cloacal membrane. There is a primitive groove, primitive streak from the epiblast cell migrate and occupy the space between the epiblast and below the epiblast become a hypoblast. And the next generation of the primitive streak groove cells comes and they occupy as a mesoderm. So in this way, all 3 germinal layer formed by the epiblast cell move through the primitive streak and make the 3 germinal layer. So already we discussed about the 3 germinal layer, how they are formed and what are the different derivative of the 3 germinal layer. So in today our topic is the body cavity. In body cavity there was a 2 folding of the body. One is the lateral folding and the other is the head folding. By this make the body cavities and we will discuss later on. Dorsal view of the cell from the epiblast. Migrate through the primitive groove to replace the hypoblast, thus forming the definitive endoderm. Initially state when the two germinal layer जो होती थी वो एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट तो फर्दर उसमें प्रोलिफरेशन एंड ग्रोथ हुई तो एपी में जो हाइपोब्लास्ट था दे आर कन्वर्टेड इनटू द डेफिनेटिव एंडोडर्म। तो ये था बेसिक जो हमने डिस्कस ऑलरेडी हमने किया था। तो buccopharyngeal membrane, dorsal view of the embryonic disc, cranial end, one is the caudal end, cloacal membrane, through the primitive streak, the cells are the migrating through this
The animation will depict ingress of the cell from the epiblast through the primitive groove to form the intra-embryonic mesoderm. Intra-embryonic mesoderm. In the initial stage, we discuss extra-embryonic mesoderm and also the intra-embryonic mesoderm. So epiblast through the primitive groove to form the intra-embryonic mesoderm. यानी कि one is the ectoderm, mesoderm, intraembryonic mesoderm, definitive mesoderm है जैसे further divided into the three proximal, intermediate and lateral plate mesoderm. They are formed from the epiblast cell as a intraembryonic mesoderm. तो ये पिक्चर थी यहाँ पे जो ये एपिडर्म था, एक्टोडर्म था, एपिडर्म जो एपिब्लास्ट सेल से, फिर एक्टोडर्म, फिर ये मेसोडर्म एंड लास्ट लेयर इज एंडोडर्म. सो mesoderm again divided into the three. One is the paroxysmal mesoderm, intermediate mesoderm and lateral plate mesoderm. थ्री जर्मिनल लेयर हमने डिस्कस किया था कैसे बन रही थी. एपिब्लास्ट के सेल माइग्रेट कर रहे थे. इनिशियली जो हाइपोब्लास्ट था उसको रिप्लेस किया और वो एंडोडर्म हो गया. उसके बाद यही पिरामिडल स्टिक से एपिब्लास्ट सेल माइग्रेट करके आए, वो इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन की. इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री. वन इज द पैराक्सिमल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल प्लेट मेसोडर्म. ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म इंटरमीडिएट का जो थर्ड पोर्शन है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, दे आर डिवाइडेड इनटू द टू लेयर. वन इज द सोमेटिक मेसोडर्म लेयर एंड स्प्लेनिक मेसोडर्म लेयर. सोमेटिक मेसोडर्म लेयर, ये आप पिक्चर देखेंगे अपर लेवल पे एमनियोटिक कैविटी था, तो सोमेटिक मेसोडर्म encircling the amniotic cavity, while the splenic mesoderm encircling the yolk sac cavity. This is the wall of the yolk sac. योग सेक से फिर गट की फॉर्मेशन होगी, तो स्प्लेनिक मेसोडर्म बिकम ए विसरल मेसोडर्म encircling the organ of the peritoneal cavity. So ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म डिवाइड हुआ दो में, स्प्लेनिक और मेसोडर्म में. तो ये इनिशियल स्टेज of the embryonic gestational age in which the neurulation occur. This is the tube which form the, आगे चल के ये न्यूरल ट्यूब बन जाएगा. जो न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन से ब्रेन 1/3 जो है और ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, और डिस्टल जो 2/3 है वो स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन होगी. तो एट दिस स्टेज देयर इज द टू oval tube. One is the neural tube, other is the gut tube. So the embryonic disc is located between and attached to the both of the yolk sac and amniotic sac. हेलो, पंदी लेक्चर पे तो जहाँ आईटी में गलाए हो रहे ना सुभाणे अचणो. Is located between attached to the both yolk sac and amniotic sac, as shown here the end of the third week. तो ये yolk sac थी और ये जो amniotic cavity का amniotic membrane, amniotic cavity का कट सेक्शन था, और बीच में थ्री जर्मिनल लेयर जो फॉर्मेशन हो रही थी. अब ये फर्दर ये वही पिक्चर जिसको हमने डिस्कस कर दिया था. तो इंटरमीडिएट इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दो तीन में पैराक्सिमल, इंटरमीडिएट और लेटरल. लेटरल प्लेट मेसोडर्म का यहाँ पे बड़ा रोल है, जो बॉडी वाल की फॉर्मेशन कर रही हैं, और उससे फर्दर कैविटी, जो बॉडी की कैविटी है, पेरिटोनल कैविटी है, इंट्राथोरेसिक कैविटी है, इंट्राप्लूरल कैविटी है, दे आर फॉर्म्ड बाय. तो ये देखें वही पिक्चर को डिस्कस किया गया है कि ये पैराक्सिमल मेसोडर्म जो है आगे चल के सोमाइट्स की फॉर्मेशन बनाएगा. सोमाइट्स से फिर वर्टिब्री. सोमाइट्स अगेन डिवाइडेड इनटू द थ्री. वन इज द स्क्लेरोटोम, अदर इज द मायोटोम एंड डर्मोटोम. स्क्लेरोटोम गिव राइज द skeletal system of the body, mostly the
एक्सियल स्केलेटल हेड और जो वर्टिब्रल कॉलम है, रिब्स हैं, दे आर फाउंड बाय दिस सोमाइट्स। तो फिर ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म था और ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म। लेटरल प्लेट मेसोडर्म डिवाइड हो रहा है और ये एक कैविटी प्रोड्यूस कर रहा है, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी भी उसको कहेंगे। तो एट दिस स्टेज ये आप देखें कि ये वही इनिशियल स्टेज था। ये न्यूरिलेशन के बाद न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई है, न्यूरल ट्यूब पड़ा हुआ है। और ये जो पैराक्सिमल मेसोडर्म था वो सोमाइट्स में कन्वर्ट हुआ, सोमेटोमियर, स्क्लेरोटोम। जब हम ये आगे यूरोजेनाइटल पढ़ेंगे वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन, तो उसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे। So during the fourth week, the flat embryo disc is converted by the folding in the both lateral and head to tail direction. दो टाइप की रोटेशन होती है, वन इज द लेटरल रोटेशन, अदर इज द हेड टू टेल रोटेशन, जिसकी वजह से फिर प्रॉपर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। और ये जो लेटरल रोटेशन है उसकी वजह से ये उसकी वजह से फिर जो है बॉडी की जो एंटीरियर वॉल जो है बॉडी की वो फॉर्मेशन बनेगी इनटू द 3 डायमेंशनल वर्टिब्री बॉडी फॉर्म। सो लेटरल फोल्डिंग, ये आप देखें, ये लेटरल प्लेट मेसोडर्म था, दो में डिवाइड हुआ था। वन इज द सोमेटिक एंड विसरल। विसरल इनसर्कलिंग द यॉक सैक कैविटी, और ये आपकी यॉक सैक कैविटी है उसको इनसर्कलिंग कर रहे हैं। और ये आपकी जो एमनियोटिक कैविटी को इनसर्कलिंग कर रही थी सोमेटिक। तो ये सोमेटिक भी फोल्डिंग, लेटरल फोल्डिंग की वजह से ये फोल्डिंग कर रहा है और ये सोमेटिक मेसोडर्म पूरा फोल्डिंग हो गई और ये लेटरल बॉडी वॉल की फॉर्मेशन हो गई। इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी जो बनी थी अब ये कंप्लीटली क्लोज हो गई और ये जो विसरल लेयर थी वो पूरे गट को, एट दिस स्टेज देयर इज टू ट्यूब, वन इज द डॉर्सल ट्यूब, अदर द वेंट्रल ट्यूब। डॉर्सल ट्यूब इज द neural tube, ventral tube is the gut tube, and gut having encircling by the visceral layer of the serous membrane, जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म की स्प्लेनिक मेसोडर्म और ये जो विसरल मेसोडर्म लेयर थी अब ये इनसर्कलिंग कर रही है इस जो गट के आर्गन हैं उनको। और ये जो आउटर साइड पे पेराइटल पेरिटोनियम बन जाएगी और आउटर लेयर ऑफ द, तो इसको सीरियस मेम्ब्रेन की जो एपिथेलियम है वो इनसर्कलिंग करेंगी और ये पूरी है इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी। तो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी ये कॉमन कैविटी है। फर्दर ये डिवाइडेड होगी आगे चल के पेरिटोनल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में और पेरिकार्डियल कैविटी में। तो lateral folding of the embryonic disc converted the flat disc into the tubular embryo. Closes of the intraembryonic coelom. Intraembryonic coelom closes हो गई. Pinch of the tubular gut from the yolk sac. ये पूरी ये yolk sac कैविटी थी, अब ये पिंच ऑफ हो गए और ये पूरी हो गई और ये इनसर्कलिंग कर रही है इसको विसरल लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म का जो पार्ट था। एक्सपेंड द एम्ब्रियोनिक कैविटी टू सराउंड द एम्ब्रियो, और ये जो सोमेटिक लेयर थी वो इनसर्कलिंग कर रही थी एम्ब्रियोनिक कैविटी को। अब ये जो सोमेटिक लेयर है वो लेटरल फोल्डिंग की वजह से, दिस इज द लेटरल फोल्डिंग, ये लेटरल फोल्डिंग, तो ये एम्ब्रियोनिक कैविटी को भी अब आप अपने साथ लेके आ रही है और ये लेटरल फोल्डिंग पूरी हो गई और ये इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोमिक कैविटी कंप्लीटेड हो गई। और ये जो एम्ब्रियोनिक कैविटी थी अब ये एम्ब्रियोनिक कैविटी जो है इनसर्कलिंग टू द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का ये डार्सल रीजन, ये वेंट्रल रीजन, डार्सल रीजन में ये न्यूरल ट्यूब पड़ा हुआ है जिसके ब्रेन की और स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन होगी। ये नोटोकार्ड है, नोटोकार्ड की जगह पे जहाँ पे जो बनेगी वो वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। नोटोकार्ड फिर उसकी जो डिस्क का एक पोर्शन है वो नोटोकार्ड उसका रिमेनेंट हो जाता है। तो फर्दर जो हम उसमें डिस्कस करें, तो इसमें लेटरल फोल्डिंग हुई। लेटरल फोल्डिंग में क्या हुआ
एक तो हुआ कन्वर्ट द फ्लैट डिस्क इनटू द ट्यूब्यूलर एम्ब्रियो। जो फ्लैट डिस्क थी अब ये ट्यूब्यूलर, पूरा का पूरा ट्यूब्यूलर ट्यूब्यूलर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो गई। और इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में बीच में दो ट्यूब हैं, ये न्यूरल ट्यूब, ये गट ट्यूब, ये डार्सली और लेटरली। तो कन्वर्ट द फ्लैट डिस्क थी, ये देखें एक फ्लैट डिस्क है। अब ये फ्लैट डिस्क की कन्वर्ट हो रही है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर में। तो फ्लैट कन्वर्ट द फ्लैट डिस्क इनटू द ट्यूब्यूलर एम्ब्रियो। और जो इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम थी वो क्लोज ऑफ हो गई। और पिंच ऑफ द ट्यूब्यूलर गट फ्रॉम द yolk sac एंड एक्सपैंड द amniotic कैविटी सराउंडिंग। तो यही चार चीजें जो फ्लैट डिस्क थी वो कन्वर्ट हो गई ट्यूब्यूलर में, और इंट्रा एम्ब्रियोनिक जो कैवसीलोम था वो कम्प्लीटली क्लोज हो गई। और जो yolk sac कैविटी pinch out हुई, pinch of the tubular gut from the yolk sac cavity, yolk sac connection between the gut and yolk, तो ये pinch off हो गई। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है yolk sac की वो डिजनरेट डिसअपियर हो जाता है। और amniotic कैविटी जो इनिशियली ऑन द डॉर्सल साइड पे था अब ये पूरे एम्ब्रियो को इनसर्कलिंग कर रही थी। तो लेटरल फोल्डिंग की वजह से चार ये चेंजेस आई। फ्लैट डिस्क कन्वर्ट हुई ट्यूब्यूलर में, इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बिकम कंप्लीटली क्लोज्ड, जो ओपन थी अब क्लोज थी। और जो ट्यूब्यूलर गट था दे आर पिंच ऑफ द ट्यूब्यूलर गट फ्रॉम द yolk sac एंड amniotic कैविटी जो है अब पूरे एम्ब्रियो को सराउंडिंग कर रही है। तो एब्डोमिनो-पेल्विक कैविटी इज लाइंड विद द पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनल इंट्रा एम्ब्रियोनिक, अब इसको हम पेरिटोनल कैविटी कर रहे हैं, उसको ये पेराइटल पेरिटोनियम इनसर्कलिंग कर रही है। और ये डार्सल मेजेंट्री है जो इस गट के जो ऑर्गन हैं स्मॉल गट और दूसरे, उनको डार्सल मेजेंट्री के थ्रू पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल के साथ अटैच करें। ये एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल। और ये पूरे को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल को ये पेराइटल पेरिटोनियम लाइनिंग कर रही है। तो गट इज कवर्ड विथ द विसरल पेरिटोनियम, और ये गट का पोर्शन है, और गट को इनसर्कलिंग कर रही है विसरल पेरिटोनियम। तो दिस इज द पेराइटल पेरिटोनियम, दिस इज द विसरल पेरिटोनियम। बिटवीन द parietal and visceral there is a peritoneal cavity. So mesentery are the double layer of the peritoneum that connect the parietal and visceral layer. तो ये देखिए मेजेंट्री है, मेजेंट्री को पेराइटल और विसरल, ये पेराइटल आपकी आ रही है और आके, और ये विसरल, तो जो है वो कनेक्शन है, डबल लेयर है पेरिटोनियम की, जिसमें वेसल्स और नर्व गुजरती हैं जो आर्गन को जिसकी मेजेंट्री होगी, जैसे मीजोगैस्ट्रियम, तो गैस्ट्रिक की वेसल होंगी और नर्व होंगी। स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल लेयर called as a peritoneal cavity. So mesentery suspend the gut and gut associated organ. तो mesentery divided हो रही है, और टू टाइप की होती हैं। One is the dorsal mesentery, other is the ventral mesentery. Dorsal mesentery जो मेजेंट्री है वो दो टाइप की हैं, डार्सल मेजेंट्री एंड वेंट्रल मेजेंट्री। डार्सल मेजेंट्री गट को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच करती है, और कुछ जो एब्डोमिनल पेरिटोनियल विसरा हैं दे आर कनेक्टेड थ्रू द वेंट्रल मेजेंट्री विथ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। द पेरिटोनियल कैविटी और जो वेंट्रल मेजेंट्री है वो मोस्टली गट के साथ अटैच नहीं आ रही। The peritoneal cavity normally contains nothing but a small amount of the fluid that moists the surface of the peritoneum. The peritoneal cavity can expand to contain the large amount of the fluid under the abnormal circumstances. Ascites is the abnormal condition in which the
a huge amount of the fluid accumulated into the peritoneal cavity. One was the peritonitis, peritonitis, primary peritonitis जो normally female में होती है, और secondary peritoneal जो है वो secondary to the any disease. Suppose tuberculosis of the gut, they will lead to the peritonitis. Appendicitis, they lead to the peritonitis, local peritonitis. If the gut perforation occur, they will lead to the diffuse peritonitis. सो नॉर्मली जो पेरिटोनल कैविटी में है होता है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड होता है, किस लिए होता है, मॉइस्ट द सरफेस ऑफ द पेरिटोनियम एंड द पेरिटोनल कैविटी जो एक्सपेंड कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ द फ्लूइड अंडर द एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में मैंने आपको बताया कि पेरिटोनाइटिस हो सकती है। पेरिटोनाइटिस फिर किसी वजह से भी उसे गट की परफोरेशन हो जाए, लोकली को इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस हो जाए तो उसकी वजह से हो सकती है। पेरिटोनल कैविटी का और डायलिसिस भी हम करते हैं मैंने, तो जो वैसे तो डायलिसिस मशीन होती है उसके थ्रू उसको हम हेमी पेरिटोनियम हीमोडायलिसिस कहते हैं, और जो हम पेरिटोनियम के थ्रू करते हैं उसको हम पीडी पेरिटोनल डायलिसिस कहते हैं। तो ये पेरिटोनियम का कुछ फन है। तो ये था लेटरल फोल्डिंग। लेटरल फोल्डिंग एक तो डिस्क ट्यूब में बन गई थी, दूसरा जो सीलो में कैविटी थी वो एनसर्कलिंग कर रही थी, पूरी कंप्लीट हो गई, तो वो हमने डिस्कस कर दिया था लेटरल फोल्डिंग है। अब ये है हेड टू टेल फोल्डिंग। हेड टू टेल फोल्डिंग इनिशियल स्टेज में एमिनेटिक कैविटी होती है, यक्षक होती है, ये हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। अब ये हेड रीजन पे फोल्डिंग होगी और टेल रीजन पे फोल्डिंग होगी। फर्दर गट की फॉर्मेशन एंड अदर जो स्ट्रक्चर हैं हेड एंड नेक की फॉर्मेशन ये यहाँ पे हो जाएगी। तो ये कुछ डेज होते हैं, तो ये प्रॉपर अगर बिल्कुल एग्जैक्ट डेट नहीं, लेकिन आपको प्रोसेस का पता होना चाहिए कि बॉडी कैविटी कैसे बनती है। तो दो मेन फोल्डिंग है, वन इज द लेटरल फोल्डिंग, द हेड टू टेल फोल्डिंग, उसकी हेल्प से ये फॉर्मेशन होती है फोल्डिंग की, बॉडी कैविटी की फॉर्मेशन होती है। तो ये देखें हेड फोल्डिंग हो रही है, ये कार्डल रीजन था, ये क्रेनियल रीजन था। अब ये क्रेनियल रीजन पे ये जो रीजन है इसमें हेड फोल्डिंग हो रही है और हार्ट ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है। हार्ट ट्यूब की ये ब्लू कलर की एक मिजोडम है। अब ये हेड फोल्डिंग हो गई है, तो ये हेड ब्रेन का फोर ब्रेन है, हाइंड ब्रेन इसी तरह ऐसे ऐसे बन रहा है। ये गट की फोर गट है, फिर ये बीच में मिड गट है, फिर ये हाइंड गट है। तो ये जो दो ट्यूब थे, वन इज द न्यूरल ट्यूब था, अदर इज द गट ट्यूब था। न्यूरल ट्यूब जो है डार्सल रीजन पे पड़ा हुआ था इनिशियल में। इन दोनों ट्यूब में अब हेड टू टेल की फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग में ये फर्दर इलांगेशन हो रही है और प्रोलिफरेशन हो रही है। तो हेड रीजन में ये फोर हेड है, जो प्रॉपर जो ब्रेन की फॉर्मेशन होगी, फिर ये स्पाइनल कार्ड की, ब्रेन की, फिर इनिशियल फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, फिर स्पाइनल कार्ड की। इसी तरह ये गट का जो ये इनिशियल पोर्शन है वो फोर गट है। फोर गट से फिर ये लंग बट की अराइज हो रहा है और लिवर बट का अराइज हो रहा है, ये फोर गट का पार्ट है। और मिड गट जो है कनेक्टेड है थ्रू द योक्सेक, थ्रू द वेटलाइन डक्ट, और ये एलेंटुएंस है, ये कुलेका का लोअर पोर्शन है। तो जब हम गट की फॉर्मेशन करेंगे तो इस स्टेज पे हमने लेटरल फोल्डिंग का बताया। लेटरल फोल्डिंग में लेटरल प्लेट मेसोडर्म का स्प्लेनिक और सोमेटिक लेयर था। स्प्लेनिक और सोमेटिक लेयर आपस में ज्वाइन, स्प्लेनिक राइट और लेफ्ट साइड वाला आपस में आके मिलते हैं, और ये जो है सोमेटिक है वो भी इसी तरह करेंगे, और सोमेटिक पूरी पेरिटोनियल कैविटी को अपने साथ लेके आ रहा है, और ये फोल्डिंग लेटरल फोल्डिंग पूरी हो रही थी। और इसी तरह ये हेड टू टेल फोल्डिंग हो रही है। नोट दैट द हेड फोल्डिंग causing the relocation of the new space of the heart pericardium and mesoderm cranial to it. The mesoderm cranial to the heart become the septum transversum. The
the mesoderm cranial to the heart. ये mesoderm है, cranial to the ये जो heart tube है, cranial to ये जो portion है, ये तो गट के से liver जो बड बन रहा है, ये बड है, ये जो ब्लू स्ट्रक्चर है, ये septum transversum है, और septum transversum relocated from the cranial to the thoracic position, and septum transversum shows that in the green will form the important part of the diaphragm. डायफ्राम की जो फॉर्मेशन होगी वो चार चीजों से फॉर्मेशन हो रही थी. वन इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम जो सेंट्रल टेटन ऑफ द डायफ्राम है उससे बन रही थी. दूसरा जो पिलिरो पेरिटोनल मेम्ब्रेन होती है, पेरिटोनल मेम्ब्रेन, उससे फॉर्मेशन होगी. तीसरा जो है इसोफेगस जो मेजेंट्री है उसकी उससे उससे होगी. और चौथा जो है ऑन द फोर्थ नंबर दी सोमाइट्स जो मैंने आपको बताया, पैराक्सिमल मेसोडर्म स्क्लेरोटोम में, मायोटोम में और डर्मोटोम में चेंज होगा. स्क्लेरोटोम से वर्टिब्री बनेगी और मायोटोम से मसल बनेगी. तो इस दिस लेवल सर्वाइकल जो है स्क्लेरोटोम है, मायोटोम है, वो फर्दर डायफ्राम की मसल में फॉर्मेशन में हेल्प करेगी. देयर आर द फोर different contribution by which the diaphragm formed. One is the septum transversum, second is the pleuroperitoneal membrane, third is the somite, cervical somite, and fourth is the mesentery of the esophagus. तो ये फोल्डिंग हो रही है और ये आपका जो हार्ट का ट्यूब की फॉर्मेशन हो रही है, और हार्ट के ट्यूब में ये मेसोडर्म का एक टिश्यू पड़ा हुआ है जिसको हम सेप्टम ट्रांसवर्सम कह रहे हैं. ये सेप्टम ट्रांसवर्सम फिर डायफ्राम में हेल्प करता है. मॉडल ऑफ द फिफ्थ वीक एम्ब्रियो, लेफ्ट एंड क्रॉस सेक्शन at the level of the septum transversum on the right. Note the location of pericardio-peritoneal canal and the formation of the diaphragm. ये देखें पेरिकार्डियो-पेरिटोनल कैनाल है और वो राइट साइड पे भी होता है और लेफ्ट साइड का, और ये मिड ऑफ द एम्ब्रियो है. तो यहाँ से ये लिवर बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है और इस प्लूरो पेरिकार्डियल पेरिटोनल कैनाल के थ्रू ही पेरिकार्डियल कैविटी और पेरिटोनल कैविटी आपस में कम्युनिकेट करती हैं और ये यहाँ पे ये डायफ्राम की फॉर्मेशन हो जाएगी. ये सेप्टम ट्रांसवर्स पड़ा हुआ है, ये प्लूरो पेरिटोनल मेम्ब्रेन है, प्लूरो पेरिटोनल मेम्ब्रेन, इंफीरियर वेना केवा, इसोफेगस, और ये देखें सेप्टम ट्रांसवर्सम. दिस इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम, सेंट्रल टेंडन जो बना रहा था, प्लूरो पेरिटोनल मेम्ब्रेन, इसोफेगस की मेजेंट्री, और सोमाइट्स जो हैं उसकी जो सर्वाइकल सोमाइट 3 or 4 they are contributed into the formation of the diaphragm. So note the location of the pericardio-peritoneal canal and formation of the. ये पेरिकार्डियो-पेरिटोनल कैनाल है. अब उसकी जगह पे ये आस्ता ये सब डायफ्राम की फॉर्मेशन. 4 कंट्रीब्यूशन है डायफ्राम की: सेप्टम ट्रांसवर्सम, प्लूरोपेरिटोनल मेम्ब्रेन, इसोफेगस की मेजेंट्री और द सर्वाइकल सोमाइट्स. These 4 structure help in the formation of the septum transversum. So coelom is divided into the thoracic and abdominal cavity. Initially जो था पूरी एक इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलम था. अब ये जो जैसे फॉर्मेशन हो गई डायफ्राम की, they are divided into the thoracic and abdominal cavity. Thoracic and abdominal cavity. तो आप ये देखें, ये एरोटा पड़ा हुआ है और ये पेरिकार्डियो पेरिटोनल कैनाल जिसके थ्रू इनिशियली स्टेज में ये कम्युनिकेट कर रहा है और ये फर्दर फॉर्मेशन हो गई. ये बॉडी वॉल एंड द रिब्स और ये आपकी कैविटी पड़ी हुई है. तो कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? सेप्टम ट्रांसवर्सम, मेजेंट्री ऑफ द इसोफेगस, प्लूरोपेरिटोनल मेम्ब्रेन एंड द बॉडी वॉल जो सोमाइट्स थे उससे जो कंट्रीब्यूशन था उसके ये आप 4 स्ट्रक्चर हैं जो सेप्टम ट्रांसवर्सन.
ये डायफ्राम की, डायफ्राम इनिशियली इंट्राएम्ब्रियोनिक सीलोम बना था, लेटर प्लेट मीजोटर्म और विसरल प्लेट मीजोटर्म सीलोम बना, उसके अंदर ये फिर डायफ्राम की फॉर्मेशन हुई। तो अब ये डिवाइडेड हो गया है thoracic cavity and abdominal cavity. So in the thoracic cavity again division occur, which is divided into the pleural cavity and pericardial cavity. तो डिवीजन ऑफ द thoracic cavity, डिवीजन ऑफ द, ये देखें एरोटा है, इसोफेगस है, लंग बड है, और ये प्लीरो पेरिटोनल फोल्ड, प्लीरो पेरिटोनल फोल्ड के बीच में ये कॉमन कार्डिनल वेन आर द प्लेस्ड. So this pericardial cavity, thoracic cavity divided into the two. One is the pleuropericardial membrane. प्यूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जो है डिवाइड कर रही है इसको पेरिकार्डियल कैविटी में और ये प्लूरल कैविटी में. So pleuropericardial membrane which separate the thoracic cavity into the two. One is the pericardial cavity, other is the pleural cavity. So one is the anomaly which is called the diaphragmatic hernia. Diaphragmatic hernia sometimes say is a bad delic hernia. So it is usually congenital. It is extensive. It often associated with the severe hypoplasia of the lung. अगर ये डायफ्रामेटिक हर्निया ये है कि ये डिफेक्ट इन द प्लूरोपेरिटोनल मेम्ब्रेन, प्लूरो डायफ्राम की फॉर्मेशन सेंट्रल टेटन बन रहा था सेप्टम ट्रांसवर्सम से, रिमेनिंग जो पोर्शन था वो बन रहा था प्लूरोपेरिटोनल मेम्ब्रेन में. अगर प्लूरोपेरिटोनल मेम्ब्रेन का डिफेक्ट राइट साइड पे हो या लेफ्ट साइड पे हो, अगर डिफेक्ट होगा तो एब्डोमिनल विसरा दे गो इनटू द thoracic cavity. अगर thoracic cavity में एब्डोमिनल विसरा herniated हो जाएंगे तो they are compressing the lung and the lung become a hypoplasia. After the lung hypoplasia, that become a fatal at the birth. It is more common on the left side of the body because the pericardioperitonal canal on the left tend to the close to the right. मैंने कहा आपको बताया था पेरिकार्डियोपेरिटोनल कैनाल जो था राइट साइड पे भी था, लेफ्ट साइड पे था, वहां पे फिर ये डायफ्राम की फॉर्मेशन होगी और ये क्लोज हो जाता है. तो जो ऐसे क्लोजर होता है तो वो राइट साइड पे पहले होता है, लेफ्ट साइड बाद में होता है. तो इस वजह से अगर लेफ्ट साइड पे क्लोज आफ्टर होता है बिफोर द आफ्टर द क्लोजर ऑफ द राइट पेरिकार्डियोपेरिटोनल कैनाल, तो वहाँ पे कॉमन होना. कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया, इसको हाइटल हर्निया भी कहते हैं. काटल द सरफेस ऑफ द डायफ्राम showing the large defect of the pleuroperitoneal membrane on the left side. B shows the intestinal loop and part of the stomach. This is the intestinal loop and part of the stomach. ये आपका लिवर पड़ा हुआ है और ये डिफेक्ट है डायफ्राम में और ये आपका ऊपर हार्ट पड़ा हुआ है. तो ये herniated हो गए हैं in the thoracic cavity. So intestinal loop and part of the stomach into the left pleural cavity. The heart and the mediastinum are frequently pushed to the right while the left lung is compressed. So in the folding, two type of the folding, one is the lateral folding and other is the head to tail folding. In this picture we see the head to tail folding, in which the head side and tail side proliferate and further elongation due to the result of the further elongation. This दो जो ट्यूब्स है, वन इज द न्यूरल ट्यूब, अदर द गट ट्यूब, तो दोनों में फर्दर प्रोग्रेशन हो रही है. तो ये जो न्यूरल ट्यूब था फर्दर ये प्रोग्रेस फॉर ब्रेन की मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और ये स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन होगी. दूसरा था गट ट्यूब, ये गट ट्यूब की फर्दर फोल्डिंग, हेड टू टेल फोल्डिंग हो रही है.
और यहाँ पे ये हाइंड गट पर आए और ये मिड गट के इन फ्रंट पे फोर गट की फॉर्मेशन और ये मिड गट। तो हेड टू टेल फोल्डिंग हमने डिस्कस किया। The formation of the primitive gut resulting from the head to tail folding, the endodermal sheath, and this is the yolk sac. ये टाइम का था कि यहाँ से स्टार्ट है, ये हमने डिस्कस किया था। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में दो लेयर, वन इज द पेराइटल peritoneal and a visceral peritoneum. Between these layers there is a peritoneal cavity, and the peritoneal cavity having a two mesentery. One is the dorsal mesentery attached to the gut, which connected with the posterior abdominal wall, and the other is the जो होती है वेंट्रल मेजेंट्री caudal portion of the foregut or up to the first part of the duodenum, the lesser sac or falciform ligament or teres ligament deformation. Abdominal cavity is lined with the parietal peritoneum. Gut is covered by the visceral peritoneum. Mesentery are the double layer peritoneum that connect the parietal and visceral layer. Space between the peritoneal and visceral called is a peritoneal cavity. तो हमने कहा कि वो नॉर्मली जो पेरिटोनल कैविटी में होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट होता है और वो वॉइस और लुब्रिकेशन देते हैं पेरिटोनल विसरास को। और एबनॉर्मली ये ह्यूज अमाउंट हो सकती है। उस एबनॉर्मलिटी में मैंने आपको बताया कि असाइटस के फिर डिफरेंट काजेज हैं। तो मोस्टली तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है या पोर्टल हाइपरटेंशन होता है। दीज आर द काजेज ऑफ द असाइटस। उसकी वजह से पेरिटोनल फ्लूइड की इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी पेरिटोनाइटिस हो, लोकल पेरिटोनाइटिस, डिफ्यूज पेरिटोनाइटिस, दे विल लीड टू द इंक्रीज अमाउंट ऑफ द पेरिटोनल फ्लूइड। तो ये dorsal mesentery and ventral mesentery. Dorsal mesentery suspend the gut and gut associated organ within the abdominal cavity, while the ventral mesentery do not suspend the gut and gut associated organ with the peritoneal cavity. The peritoneal cavity normally contains nothing but small amount of the fluid. The peritoneal cavity can expand and contain a large amount of fluid under the abnormal circumstance. The derivative of the ventral mesentery shown in the below and the derivative of the dorsal mesentery shown into the right. ये below की तो दो lesser omentum and falciform ligament. These are the derivative of the dorsal mesentery and derivative of the ventral mesentery and dorsal mesentery. These are the derivative dorsal mesogastrium, इसी तरह dorsal mesoduodenum। तो ये मेजेंट्री प्रॉपर, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। फिर ये सीलियक आर्टरी फोर गट के लिए सीलियक आर्टरी होती है और मिड गट के लिए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है और हाइंड गट के लिए इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी होती है। तो ये गट का ये पोर्शन, तो ये फोर गट, फिर ये स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मिड गट यॉक सैक के साथ अटैच होता है वेटलाइन डक्ट के थ्रू। और ये आपका हाइंड गट, और हाइंड गट का जो लोअर पोर्शन है दे आर कॉल्ड द कोलाइका। फिर हम जब ब्लेडर की फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फर्दर इसको डिस्कस करेंगे तो कोलाइका जो अपर पोर्शन है दे आर आल्सो ऑक्यूपाइंग प्लस अम्बलाइकल कार्ड। तो ये भी ऑब्लिटरेट हो जाता है, कभी कभी सिस्टम रहेगा, तो इसकी भी हमने डिस्कस करा। तो व्हाट आर द एडल्ट डेरिवेटिव ऑफ द प्रिमिटिव गट रीजन। फोर गट का हमने आपको बताया कि वो फेरेंजियल पार्ट होता है, दूसरा नॉन फेरेंजियल पार्ट होता है। तो फेरेंजियल पार्ट जो माउथ और ये होता है। तो जो फोर गट है अप टू द सेकंड पार्ट ऑफ द duodenum where the bile duct is open into the second part of the gut में जब ओपन होती है वहां तक फोर गट होती है। वहां से लेके अप टू द
proximal, one third of the transverse colon, two third of the transverse colon. ये जो होता है मिड गट होता है, distal one third of the transverse colon up to the upper portion of the anus. They are hind gut. So these are the derivative of the hind gut. तो फर्दर जब हम जीआईटी पढ़ेंगे तो फोर गट की मैंने आपको बताया कि जो आर्टरियल सप्लाई है वो सीलियक आर्टरी है, मिड की सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी और हाइंड की इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। तो ये इनिशियल स्टेज में ऑब्लिटरेशन ऑफ द कोरियोनिक कैविटी, ये एमिनियोटिक कैविटी था, फोल्डिंग हुई, लेटरल फोल्डिंग में एमिनियोटिक कैविटी पूरा इंसर्कलिंग कर रही थी एम्ब्रियो को और उसके बाहर थी कोरियोनिक कैविटी। जैसे एमिनियोटिक कैविटी की फर्दर प्रोग्रेशन हो रही थी तो ये कोरियोनिक कैविटी बिकम ए ऑब्लिटरेट एंड ओनली रिमेन द एमिनियोटिक कैविटी। फिर एमिनियोटिक कैविटी को हम डिस्कस करेंगे तो उसके कितना फ्लूइड होता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, फंक्शन क्या है, तो जब इसका टॉपिक आएगा तो यहाँ पे आप देखें कि दो फोल्डिंग हुई, वन इज द लेटरल फोल्डिंग की वजह से ये एमिनियोटिक कैविटी इसको इनको पूरा इंसर्कलिंग करेगी और ये एमिनियोटिक कैविटी फर्दर इसमें ग्रो इलांगेशन और फर्दर प्रोलिफरेशन होगी, लेंथ में बढ़ेगी। तो ये जो कोरियोनिक कैविटी इसके साइड में पड़ी हुई है बिल्कुल इसको ऑब्लिटरेट करके यहाँ तक पूरे की पूरी एमिनियोटिक कैविटी आ जाती है। तो ये और लेटरल फोल्डिंग की वजह से ये हुआ और ये हेड टू टेल फोल्डिंग की वजह से ये फोर गट, मिड गट, हाइंड गट की फॉर्मेशन हुई। So one is the oligohydramnion, two little amniotic fluid called the oligohydramnion, and the polyhydramnion, too much amniotic fluid called the polyhydramnion.